Today we are truly blessed to have Sri Anand Bhagwan Prabhu with us. He will share some deep and beautiful meaning of Rath Yatra. हरे कृष्ण प्रभु जी रथ यात्रा रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज है, पर आपके अनुसार ऐसा क्या रीजन है कि भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर आ जाते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं कि रथ यात्रा के रिलेटेड बहुत सारा अनगिनत कहानियां हैं. One of the stories, prominent stories why Lord Jagannath had come out of temple is because of his affection for वृंदावन वासीज और व्रजवासीज. तो जो वृंदावन वासी थे वो जब कृष्ण वापस मथुरा चले गए और उसके बाद द्वारका चले गए, तो वो चाह रहे थे कि उनका दर्शन हो, उनके साथ आदान प्रदान करे, उनके साथ लीला करे, उनका मनी मन ऐसे चाह रहे थे. तो जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए थे बहुत दिन के बाद, बहुत साल के बाद, तो वहां पर ब्रजवासी भी आए थे और वो कृष्ण को देखा, उन्होंने राजा बन गया, उनके साथ मंत्रियां थे और रानियां थे और पूरा ही वाज हैविंग किंगली पैराफेर्नालिया एंड ऑल दैट. तो फिर वो बोलने लगे, उनको पुराने दिन याद आया, वृंदावन जब कृष्ण वृंदावन में थे और उनके साथ आदान प्रदान कर रहे थे, उनके साथ लीला कर रहे थे, तो सब कहानियां याद आने लगे. और उन्होंने मनी मन उन्होंने एक सिंहासन बनाया, रथ बनाया, सिंहासन बनाया और कृष्ण को रथ के ऊपर बैठाया और उनको खींचते खींचते वापस वृंदावन लेके गए. So this is one prominent story which shows that how Jagannath, Krishna also accepted their affection and he has put himself on the rath. और फिर जब ब्रजवासी उनको खींचते खींचते लेके गए तो कृष्ण भी उनके साथ गए. प्रभु जी, what is the story behind the king sweeping the road during Rath Yatra? Even today we see many devotees sweeping the path. Yeah, Purushottam Dev was the person, he was the king during when before Lord Chaitanya. So this was about 15th century. So at that time, Purushottam Dev was engaged to Padmavati. Purushottam Dev was the king of Orissa and Padmavati was the princess of Tamil Nadu. So he was engaged with her, and Padmavati, along with her father, they had come to see Purushottam Dev. And there was Rath Yatra, the festival of car was there, Rath Yatra was there. And when Rath Yatra was being celebrated, Purushottam Dev, despite he being the king of Orissa, he was a very humble king. He wanted to offer all respects to Lord Jagannath. So he has decided to himself personally sweep the road in front of Jagannath. So when he was sweeping like this, then the Tamil Nadu king, he felt little embarrassed. He thought that how can I give my princess in marriage to King Purushottam Dev? So without giving any information, he went back to Tamil Nadu. Purushottam Dev he was not happy. I'm not sweeping, I'm not a buggy, sweeping roads for common people, I'm sweeping roads for Lord Jagannath. So he became angry and he said that I have to teach a lesson to this Tamil Nadu king. So he went and declared battle over Tamil Nadu. So he goes there and he fights the battle, and unfortunately Purushottam Dev gets defeated. So he comes back and then he goes in front of Jagannath and he prays to Jagannath. He said, I have fought this battle not for myself but for you. So why was I defeated? मैं क्यों हार गया? तो इस प्रकार उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगे. तो जब भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार प्रार्थना करने लगे तो भगवान जगन्नाथ बोले, अरे आप मेरे लिए आप गए वहां पर युद्ध करने के लिए, क्या मेरे से आप आशीर्वाद मांगे कि मेरे को पूछे क्या? तो जगन्नाथ बोले, आपको मैं अभी आशीर्वाद देता हूँ, आप जाओ. इस प्रकार जगन्नाथ बोले. तो फिर पुरुषोत्तम देव इस बार गए, तो जा रहे थे तो फिर रास्ता में एक जो बटर मिल्क बेचने वाली थी, देयर वाज वन लेडी हु वाज सेलिंग बटर मिल्क. सो ही मीट्स हर. So yeah, and the lady says that two of your soldiers, they went ahead. One person was in black in color and another person was white in color, and they were going ahead. And they took away all my buttermilk and they said that you will pay them the expense. तो फिर पुरुषोत्तम देव बोले, अरे मैं क्यों पे करूंगा? एनीवे आप उनका कुछ बताएंगे क्या? वो बोले, नहीं नहीं, वो लोग गए और मेरे को उन्होंने अपना अंगूठी दी है. तो अंगूठी दिखाई, अंगूठी देगा तो जगन्नाथ का अंगूठी था. वो तो पुरुषोत्तम देव बहुत खुश हो गए. इसका मतलब जगन्नाथ और बलदेव हमारा सामने है, दे आर फाइटिंग ऑन द फ्रंट लाइन्स, सो व्हाई वी शुड फियर? तो ही बिकेम सो हैप्पी, ही गेव मेनी विलेजेस टू दैट लेडी. तो इस प्रकार से तो उनको दे दिया और फिर आगे गए और उसके बाद वो तमिलनाडु के राजा को हरा दिया. और उसके बाद पद्मावती को लेके आए और पद्मावती को लेकर आए और उनको कुछ लेसन सिखाना था. तो फिर पद्मावती को बोले, अच्छा आपको आप बंगी के साथ शादी करना चाहते हैं ना, मैं आपको बंगी के साथ शादी कराऊंगा. ऐसा करके उनको बोल दिया. नेक्स्ट ईयर एक साल के बाद मैं आपके बंगी के साथ शादी कराऊंगा. फिर पद्मावती बहुत उदास हो गई, बड़े भक्त थी, वो बहुत उदास हो गई. फिर एनीवे वो मंत्री के साथ रह रही थी. तो एक साल हो गया, एक साल होने के बाद फिर से रथ यात्रा हुई.
रथ यात्रा होने के बाद फिर उस दिन हुआ जिस दिन शादी होने वाला था, पुरुषोत्तम देव ने घोषणा कर दिया कि आज पद्मावती को एक भंगी के साथ शादी कराऊंगा। मंत्री को बुलाया है, एक अच्छा भंगी को चूज कीजिए पूरा राज्य में जो उनके साथ शादी कर सकते हैं। तो फिर भंगी ने तुरंत बोले, इज द मोस्ट क्वालिफाइड Bhangi in this kingdom is you who can get married with this Padmavati. So that and Purushottam Dev was also internally happy. So he got married, and their son became the illustrious Pratapudra Maharaj, who effectively administered Orissa, and he also was a great devotee of Lord Chaitanya and Krishna. प्रभु जी, हम सब जानना चाहते हैं भगवान जगन्नाथ की इतनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों है? लाइक इट्स सो यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटीज। तो भगवान जगन्नाथ जब वृंदावन गए थे, तो जगन्नाथ वहां पर ब्रजवासियों के उन्होंने देखा कि ब्रजवासी जो विरह में इतना व्याकुल थे, उसको देख के वो भाव में भाव विभोर हो गए। तो ये भाव का लक्षण है, भाव का 8 लक्षण है। उसमें एक लक्षण है कि आंख बड़े बड़े हो जाता है, तो इसलिए उनका आंख बड़े बड़े है, ये एक कारण। और दूसरा कारण है, जो भगवान जगन्नाथ को जिन्होंने आमंत्रित किया, the person who had invited Lord Jagannath to come and preside in this earthly planet is Indradumna Maharaj. तो उन्होंने 3 वरदान मांगा जगन्नाथ से। एक वरदान मांगा कि I should not have any descendants, because he felt that if I have descendants, they may claim ownership of Jagannath temple. So he said I should not have any descendants. Second benediction he asked was that Jagannath's hand should never be dry. That means he should continuously accept bhoga. तो ये दूसरा आशीर्वाद मांगा। तीसरा आशीर्वाद मांगा कि भगवान जगन्नाथ का जो आंख में कभी there should not be eyelids for his eyes, because he should be giving darshan to everyone all time. So therefore, if we go to Jagannath temple, 20 hours in a day, Jagannath gives darshan to common public, and 4 hours in a day he gives darshan to devatas. So the darshan may be closed for 4 hours in a day, but at that time he gives darshan to devatas. So therefore he doesn't have eyelids and he has large eyes. प्रभु जी, ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा दौरान रथ का रस्सी खींचना अति शुभ है, लेकिन क्या ये सच है? सिर्फ रस्सी खींचने से सारे पाप धुल जाते हैं? हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि हमारा जो भी कर्म है, जो भी पाप है, वो धुल जाता है रस्सी खींचने से। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी सच है कि भगवान जगन्नाथ के पास इतना कृपा है हमको देने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसा योग्यता भी रहना चाहिए उसको लेने के लिए। मान लीजिए हम बिल गेट्स के पास जाएँगे, उनसे बोलेंगे, उनको हो सकता है इच्छा रहेगा कि हमको बहुत कुछ धन देने के लिए, लेकिन हमारे पास ऐसे क्वालिफ़िकेशन भी रहना चाहिए उसको लेने के लिए। तो वैसे ही जगन्नाथ के पास उनके पास ऐसे कृपा है उनको हमको देने के लिए। जैसे मान लीजिए हम कोई ग्लास में पानी डालते हैं, ग्लास में अगर ये 200 एमएल का ग्लास है और हम उसमें 300 एमएल डालेंगे, तो नेचुरली 100 एमएल बाहर गिर जाएगा। 200 या 300 एमएल उसको कैरी करने के लिए उसके पास 300 एमएल का कैपेसिटी रहना चाहिए। तो वैसे ही हमारा हमारा क्या योग्यता रहना चाहिए? 2 चीज़। एक है कि हमारे पास वो नम्रता रहना चाहिए भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और दूसरा है तत्परता रहना चाहिए। वी शुड हैव दैट ईगरनेस to be able to receive that mercy of Lord Jagannath. So these two are the qualifications by which we can become recipients of Lord Jagannath's mercy. प्रभु जी, रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ गए थे? जगन्नाथ का जो आविर्भाव तिथि है वो स्नान यात्रा का दिन होती है। तो on the day of स्नान यात्रा, Lord Jagannath has appeared in this planet. So whenever there is appearance of Lord, then there is Abhishek. Now Jagannath is very merciful. वो बहुत कृपालु है। हम देखते हैं कोई विग्रह का अगर अभिषेक होती है, तो सिर्फ पुजारी लोग के गिने चुने 3-4 लोग, वो लोग जाके उनका अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ इतना कृपालु है, वो बाहर में आते हैं और सब लोग उनको जाके अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप हमारे मंदिर में जाएंगे, तो आप भी भगवान जगन्नाथ का अभिषेक कर सकते हैं। तो आपको मौका मिलेगा अगर हमारे मंदिर में जाएंगे तो भगवान जगन्नाथ को इतना लोग हजार लोग जाके उनका अभिषेक किए थे। तो जब अभिषेक इस प्रकार इतना हजार लोग जाके किए थे, नेचुरली तो बीमार पड़ेंगे। ऑफ कोर्स भगवान जगन्नाथ तो ही इज लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, नेचुरली ऑल दीज थिंग्स डज नॉट अफेक्ट हिम, बट एट द सेम टाइम ही इज आल्सो डूइंग हिज पास्ट टाइम, हिज लीला। तो जब वो लीला कर रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं कि कैसे उनको इतना भक्त लोग प्रेम से अभिषेक कर रहे हैं, तो फिर वो अभिषेक स्वीकार करते हैं, तो नेचुरली वो बीमार पड़ गए। तो अभी बीमार पड़ गए तो फिर वो सिक रूम में है, और वो उनका पर्सनल अटेंडेंट्स और जो पर्सनल डॉक्टर्स है उनको इलाज दे रहे हैं और उनको
एक पर्टिकुलर मेडिसिन देते हैं। अगर आप हम हमारा मंदिर अभी आएँगे, तो फिर वो दवाई आपको भी मिलेगा प्रसाद के रूप में, तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ अभिषेक के बाद, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन उनका बीमारी होती है और उनका पर्सनल अटेंडेंट्स और पर्सनल डॉक्टर्स उनको अटेंड कर सकते हैं और उनका कृपा ले सकते हैं और हम भी उनका दवाई प्रसाद के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। प्रभु जी, रथ यात्रा दौरान अनगिनत लोग मिलकर रथ खींचते हैं, पर कभी-कभी रथ बिल्कुल नहीं हिलता। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि रथ हिलता भगवान जगन्नाथ की कृपा से। अगर मोटर से खींचता है, मोटर से हिलता है या फिजिक्स से हिलता है, तो इट इज़ नॉट सच अ वेरी बिग थिंग। तो भगवान जगन्नाथ जब चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आप जगन्नाथ पुरी में जाते हैं, पुरी में ऐसे होती है भगवान जगन्नाथ कभी-कभी सीधे जाते हैं, कभी-कभी टेढ़े भी जाते हैं। तो टेढ़े जाते हैं तो अगर मान लीजिए किसी का दुकान रास्ता में आ जाता है, तो फिर भगव जगन्नाथ तो पीछे नहीं जाते, जगन्नाथ को सामने आगे ही जाना है, तो दुकान को तोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से। तो ऐसे हुआ हमारे बॉम्बे में ऐसे हुआ, हम लोग जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे थे, तो फिर ये हमारा रथ जा रही थी, तो वहाँ पर एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी किसी का था, तो उसमें थोड़ा-सा लग गया। तो लग गया तो देयर वाज़ स्कैर ऑन दैट BMW vehicle. So our devotees are very gentlemanly. So they have put a note there, see this has happened because of Lord Jagannath's Rath Yatra, and this is our contact number. Please please contact us. Whatever is the expense needed for making it proper, we'll give that expense. तो फिर अगले दिन उनको फोन आया, फिर उन्होंने वो सज्जन ने हमारे भक्तों को बुलाया, हमारा भक्त लोग उनके पास गए और बोले, अरे आप इतना जेंटलमैनली है, कोई अगर ऐसे टोक देते तो वैसे छोड़ के चला जाता, लेकिन आपने वहां पर उसका कागज भी लगाया और उन्होंने बताया, अरे भगवान जगन्नाथ मेरा गाड़ी को टकराया, ये तो मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं कि आप क्या एक्सपेंस दोगे, मैं आपको बड़ा डोनेशन दूंगा। इस प्रकार बोल के उन्होंने बड़ा डोनेशन दिया हमारे भक्तों को। तो it's considered to be great mercy of Lord Jagannath that sometimes he goes straight, sometimes he goes कभी-कभी वो टेढ़ा जाते हैं, जो ये भगवान का कृपा माना जाता है और भक्त लोग बहुत खुश होते हैं उससे। Prabhu ji, what does yatra really mean in the context of Rath Yatra, and how can it help us to grow personally? There are two significant things which Lord Jagannath is doing. First and foremost thing is that he is coming out in order to pacify the separation which Vrindavan Vasis are feeling. Secondly, a very important reason why he is coming out is for giving his mercy. So just like we were discussing, so there are in general no deities. कोई भी विग्रह बाहर नहीं आते हैं अपने दर्शन दिलाने के लिए। सिर्फ जगन्नाथ स्पेशल है। जगन्नाथ स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। ऐसे कोई विग्रह कहीं भी बाहर नहीं आते और अपना कृपा बरसाने के लिए बाहर नहीं आते सिर्फ, लेकिन जगन्नाथ बाहर आते हैं और अपना अपना कृपा बरसाते हैं। तो जब हम इस प्रकार से है, तो irrespective of caste, creed, religion or sex, Jagannath is merciful to everyone. He gives darshan to everyone. Everyone gets an opportunity to serve him. Everyone gets an opportunity to pull the cords of Lord Jagannath and get service to and offer service to him. And then also people get opportunity to go and touch him and even embrace him, which is not the case with any other deities. So in this way Lord Jagannath is very merciful and very special. तो जब इस प्रकार हम इस यात्रा में हम लोग भाग लेते हैं, जब इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ का रथ खींच के उनको मदद करते हैं, ब्रजवासियों को मदद करते हैं सुंदराचल से नीलाचल से सुंदराचल लेके जाने में, तो फिर उस माध्यम से हम उनका निमित्त बन जाते हैं। We become instruments of Brajavasis in pulling Lord Jagannath from Dwarka to Vrindavan. By doing this, we are inviting Lord Jagannath into our hearts, and in this way making our hearts auspicious. प्रभु जी, रथ यात्रा दौरान एक ट्रेडिशन है कि सुदर्शन चक्र सुभद्रा देवी के रथ में रखा जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो जब जगन्नाथ वृंदावन जा रहे थे, तो पहले सोच रहे थे कि वृंदावन में पहले जाऊं कि कोई और जाएंगे, तो फिर सुभद्रा वॉलंटियर करते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल पास्टाइम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। दिस आर ऑल लॉर्ड जगन्नाथ इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, एट द सेम टाइम ही डज दिस पास्टाइम्स एज वेल। तो फिर जगन्नाथ पे तो सुभद्रा वॉलंटियर करते कि मैं जाती हूँ करके। तो फिर बलदेव बोलते नहीं नहीं नहीं, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि सुभद्रा इज अ फीमेल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड,
So he wants that she be offered protection. So he says that I will go ahead. तो इसलिए हम जब रथ निकलती है तो पहले बलदेव का रथ निकलती है और उसके बाद फिर सुभद्रा। तो सुभद्रा तो अकेले है मतलब वो अपना रथ में जाती है। तो जा रही थी तो फिर जगन्नाथ ने अपने सुदर्शन भेजा क्योंकि सुभद्रा का था कि उसके साथ सुदर्शन रक्षा में रहे बिकॉज सुदर्शन इज द potency of the Lord which gives protection. So Lord Jagannath sends his Sudarshan in order that he accompanies Sudarshan, he accompanies Subhadra. So along with Subhadra, Sudarshan also comes. So first Baldev comes, Baldev moves, and then Subhadra's Rath moves, and then Jagannath's Rath moves. In this order they go to Vrindavan. प्रभु जी, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति पूरी नहीं बन पाई थी, इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो जगन्नाथ रथ ऐसे नहीं कि उनका मूर्ति पूरा नहीं है, उनका मूर्ति पूरा ही है क्योंकि जब जगन्नाथ वृंदावन गए थे तो उनका भाव प्रकट होने लगा। तो जब उनका भाव प्रकट होने लगा तो आंख बड़े-बड़े हो गए और भाव का और एक लक्षण है कि उनका हाथ अंदर चले गए, उनका पैर अंदर चले गए। तो ऐसे लग सकता है कि उनका हाथ नहीं है और पैर नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, उनका हाथ भी है और पैर भी है और क्योंकि लीला है तो फिर इसीलिए उनका हाथ और पैर अंदर है। एक पहले चीज़ और दूसरा चीज़ है भगवान का सब अंग के समान है। देयर इज अ श्लोका इन ब्रह्म संहिता which says अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय बुद्धिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिदं जिगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। इसका मतलब ये है कि भगवान का जो भी अंग है बाकी अंग जैसे काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उनका आँख जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान अपने हाथ से स्वीकार नहीं करते, अपने आँख से स्वीकार करते हैं, उसको देखते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसीलिए वो प्रसाद बन जाता है। तो इस प्रकार से तो जगन्नाथ को भी ऐसे ही कहानी आती है कि एक महिला, एक भक्त थी, तो चाह रहे थे कि जगन्नाथ को कुछ भोग लगाया, लेकिन उनको कुछ कारणवश वो मंदिर में उनको एंट्री नहीं दिए, वो जा नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उनका भक्ति तो बहुत ऊँची कोटि भक्त थे। तो फिर वो अपने गाँव जगन्नाथपुरी के बाहर में एक गाँव में वो अपने भोग बना रही थी और सोच रहे थे जगन्नाथ मेरा भोग स्वीकार नहीं किया, क्या करें, क्या करें? तो फिर जगन्नाथ अपने मंदिर में थे, वहाँ से अपने हाथ बढ़ाया और उनको भोग स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से कहानी आता है। तो भगवान जगन्नाथ he is नाद of whole jagat. So he can take bhoga everywhere. In fact, we have so many Rath Yatras. Just in Malaysia, we have more than 30 Rath Yatras, which we are conducting. तो हर जगह में वो भोग स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से तो ऐसे नहीं कि भगवान जगन्नाथ का हाथ नहीं है, जगन्नाथ का हाथ है। एक पहले चीज़ है और दूसरा चीज़ है जैसे आप बोल रहे थे, तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ने विश्वकर्मा को बुलाया, तो विश्वकर्मा बोले कि 21 दिन लगेगा ये जगन्नाथ का मूर्ति बनाने के लिए। तो फिर वो अंदर गए और 14 दिन के बाद वो आवाज़ बंद हो गया। तो इंद्रद्युम्न महाराज को डाउट आया कि अरे! आवाज़ ही नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने विश्वकर्मा ने बोले आप मेरे को डिस्टर्ब मत करो, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मैं चला जाऊँगा। तो फिर लेकिन आवाज़ बंद हो गया तो थोड़ा व्याकुल हो गए कि अब अंदर में तो कुछ खाने के लिए नहीं जा रहे, कुछ खा भी नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया इनको। तो फिर जाके उन्होंने दरवाज़ा खोला तो फिर विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। तो ऐसे लग रहा था कि जगन्नाथ जो है इनकम्प्लीट है। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज बहुत उदास हो गए, मैंने कुछ गलती किया जिसकी वजह से जगन्नाथ इनकम्प्लीट है। इस प्रकार सोचने लगे बट जगन्नाथ इमीडिएटली सेड डोंट वरी, this form is complete in itself, so you need not worry, my form is like this and it is a complete form. So it's not that Jagannath's form is incomplete, it is complete. He is the supreme personality of Godhead, it is complete and perfect. प्रभु जी, लास्टली इस्कॉन न्यू टाउन या बाकी सारे इस्कॉन कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं रथ यात्रा इस साल? तो हम लोग इस्कॉन में जैसे मैं बता रहा था तो we have this ISKCON has this golden opportunity to celebrate Jagannath Rath Yatra all over world. We have been celebrating Jagannath Rath Yatra from 19 Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON. He celebrated Rath Yatra in 1967 in San Francisco, and then over a period of time it is being celebrated all over world in all places. Earlier Jagannath used to get bhoga from Orissa, whatever, he used to get chawal dal, rice dal and all these things. Now he goes to South India, he gets idli, sambar, dosa and all these as bhoga items. He goes to Italy, he gets chow mein, pasta, pizza as bhoga items. He goes to America, he gets burger and salad and all these as bhoga items. He goes to different parts of the world, he gets all different items as bhoga, and then he offers, and once he accepts it and he offers it as prasad to everybody.
So in this way, so here in Calcutta also we are celebrating. We want to make Jagannath Rath Yatra as big as possible. So coming June 27th, we are having Rath Yatra Sita Rath, and July 5th, we are having Ulta Rath. So Lord Jagannath will be moving from Minto Park on June 27th. He will be going around 11 o'clock, 12 o'clock, and he will reach Park Street after 4-5 hours. तो आप सब आ सकते हैं, उनको खींच के लेके जा सकते हैं, और इसमें इस प्रकार जगन्नाथ रथ यात्रा में आप भाग ले सकते हैं। वहां पर जाने के बाद वहां पर 8 दिन रहेंगे ना, तो पूरा 9 दिन का रथ यात्रा है। तो वहां पर 7 दिन 8 दिन जब जगन्नाथ उधर रहेंगे, वो पूरा जो पार्षद का वृंदावन बन जाता है। तो सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हम कभी भी जा सकते हैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए, और इस प्रकार उनका कृपा पात्र बन सकते हैं। और शाम में रोज 4 बजे से लेकर 9 बजे तक वहां पर मेला लगती है, और वहां पर आप आ सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं। और बहुत सारा कल्चरल एक्टिविटीज होता है, जिसमें हम दर्शाते हैं कि भगवान जगन्नाथ का लीला दर्शाते हैं, और हम लोग दर्शाते हैं कि भगवान जगन्नाथ के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, एंड वी इनवाइट एवरीवन फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ रथ यात्रा। थैंक यू। Thank you so much, Prabhuji, for such beautiful stories. Hare Krishna. हरे कृष्ण।